Good morning. I, Dr. Ashwini Deshmukh, welcome you to video lecture on Introduction to Acid and Bases. In chemistry, there are two types of substances which are exactly opposite in nature. Objectives of this topic: specific objective, define acids, define bases, explain at least two types of acids with example, distinguish between acids and bases and define salt, make a list of acids and bases and salts in daily life. General objective: to develop scientific attitude and knowledge about acids, bases and salt. In chemistry, there are two types of substances which are exactly opposite in nature. We have lemon, bitter gourd, sugar. Some of these fruits taste sour, some taste bitter and some taste sweet and salty. The sour, bitter, sweet and salty taste of fruit arises due to presence of acids, bases and salt in them. Which drink you prefer in summer? Generally, cold drinks and juices we prefer in summer. How lemon juice is made? Lemon juice is made from lemon, sugar and water. What is the taste of lemon? Yes, it is sour in taste. Why its taste is sour? No? Okay. The taste of lemon is sour due to presence of acid. In the 17th century, Robert Boyle first labeled substance as acids and bases and changed the color of certain natural dyes. In this lesson, we will study some properties of acids, bases and salts. First, sources of नेचुरल एसिड्स. अब ये जो नेचुरल एसिड्स है उसको अपन कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं. और ये जो एसिड्स है नेचुरल एसिड्स वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो नेचुरल सोर्सेस है उसमें प्रेजेंट रहते हैं. उसको बोलते हैं अपन नेचुरल एसिड. हैव यू हर्ड स्टिंग ऑफ एंट एंड बीज कंटेन एसिड एंड कॉजेस बर्निंग सेंसेशन? Yes, the sting of ant and bees contains formic acid. The next is lemon and kava. The citric acid is present in citrus fruit like orange, grapes, lemon, etc. And the malic acid is present in different vegetables, and apples is a rich source of malic acid. Now, next is ascorbic acid. ये जो ascorbic acid है वो ये जो orange है उसमें रहते हैं. देन लीची. उसके बाद ये जो एसिटिक एसिड है वो कहाँ पे रहता है? विनीगर. ये नाम सुना होगा आपने. तो विनीगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. उसके बाद ये जो लैक्टिक एसिड है वो कर्ड में होता है. उसके बाद है टार्टारिक एसिड. ये जो टार्टारिक एसिड है ये ग्रेप में रहता है. उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट रहते हैं. उसके बाद सोर्स ऑफ एसिड्स देखो जो मैंने अभी कुछ बताया है. देन डिफरेंट बेसिस.
अब ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। वैसे सोप है, सोप में भी बेसेस रहते हैं। जो अपन चॉक यूज़ करते हैं उसमें भी बेस रहता है। उसके बाद बेसिस इन एवरीडे लाइफ, जैसे ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, पिज़्ज़ा है, उसमें क्या कौन सा है रहता है, बेकिंग सोडा। और ये जो बेकिंग सोडा है वो है NaHCO3। अब ये देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई है मैंने, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जो रिएक्शन है ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो अपन लैब में करते हैं। उसके बाद ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो डेली लाइफ में कहाँ पे होती है। समटाइम्स वी फील inflammation. This is because stomach secrete hydrochloric acid, and hydrochloric acid is a strong acid which help us to digest food, but too much of acid cause inflammation. That's why we take antacid. Antacid contains base which neutralize acid in the stomach. Where properties of acids and bases. Acid tastes sour, turn litmus red, react with base to form salt and water and electrolyte. Base taste bitter, turn litmus blue, react with base to form salt and water and electrolyte. ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मैंने बताई है। एसिड और बेस रिएक्ट होके सॉल्ट बनता है, यानी न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होता है और इस रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है पीएच स्केल। अब ये पीएच क्या है, इट इज़ अ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो पीएच स्केल है ये क्या करती है, इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द acidity and basicity of solution. A solution whose pH in between 0 to 7 is known as acidic pH and pH above 7 is basic pH. और ये जो 7 है इट्स अ न्यूट्रल pH। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने दी है, देखो बैटरी उसका pH दिया है उसके नीचे 0, लेमन pH 2, ब्लड 8 pH, सोप pH 12। उसके बाद है ब्लीच है, अमीनो सॉल्यूशन है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का pH देखो कितना है, कितना दिया है 9। एंड कॉफ़ी जो अपन लेते हैं उसका pH है 5। सिमिलरली विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, मैंने अभी बताया आपको, उसका pH कितना है 3। और वो स्टमक में जो एसिड अपन देख रहे थे अभी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में डेली लाइफ के, उसका pH कितना है 1। सो इट्स वेरी एसिडिक। और बैटरी का pH है 0। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट। सो फर्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है अरेनियस। ये अरेनियस साइंटिस्ट क्या बता रहा है कि अगर एसिड को अपन ने वाटर में डाल दिया तो अपने को H+ आयन मिलते हैं, और बेस जो है उसको अगर वाटर में डिसॉल्व किया इट प्रोड्यूसेस OH आयन। दूसरे जो साइंटिस्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड। उसने बताया है कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। यहाँ पे मैंने 2 फोटोग्राफ्स लगाए हैं, बुमराह बॉलर और जडेजा फिल्टर। तो इसका मतलब क्या है, एसिड ये जो है एसिड वो क्या है, प्रोटॉन
डोनर दे रहे हैं, यानी बॉलिंग कर रहे बॉलर, और जडेजा है ये क्या ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो है फील्डर, बेस। उसके बाद समरी है, एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सोर टेस्ट, बेस, bitter taste, slippery, salt is formed between acid and base, and this reaction is known as neutralization, and neutralization plays important role in our daily life. वर्कशीट ये है, ये आपको सॉल्व करके मेरे को भेजनी है। थैंक यू।